Good morning, student. Again, we are here in the same class, that is physical education, that is for 11th standard. Today we will discuss changing trends and career in physical education, the first chapter. In this first chapter, there are 5 subtopics. I read one by one. Earlier I have sent you a few pages, pick of few pages on your WhatsApp number. These 5 subtopics are in this first chapter, that is meaning and definition of physical education, and aims and objectives of physical education, career options in physical education, and fourth one is competitions in various sports at national and international level. And the last, and that is fifth topic, subtopic of this first chapter is Khelo India program. So guys, today we will discuss the very first topic of this chapter, that is meaning and definition of physical education. की जो physical education है उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या है. परिभाषाएं मीन्स डेफिनेशंस मीन्स अलग अलग जो एक्सपर्ट हैं रिलेटेड फील्ड के वो उसके बारे में क्या कहते हैं, सो दैट कि उनको कम से कम शब्दों में आपको समझाने के लिए वो क्या कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन. देन मीनिंग, this is the combination of two words. You say that physical plus education. First, the physical means related to body. Let me clear you one thing, my dear student. In physical education or sports, we study the body that is in movement. तो movement के लिए body को क्या चाहिए? Speed, strength, endurance, flexibility, coordination, ये सारी चीजें चाहिए. तो जब हम सिस्टम, एक बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम है, वो सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, वो सारे सिस्टम जब फंक्शन करते हैं तभी ये चीज़ें परफॉर्म होती है. और इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए फिजिकल फिटनेस की कुछ एबिलिटी चाहिए होती है. दीज एबिलिटीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो दैट इज रिलेटेड टू फिजिकल एंड एजुकेशन. एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. इट इज सेड चिल्ड्रन और मैन लर्न्स फ्रॉम वॉम्ब टू टॉम्ब. मनुष्य अपने गर्भ से लेकर जब तक वो उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो सीखता रहता है. सो द एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस विच बिगिंस विद द बर्थ एंड एंड्स टिल डेथ. सो द मेन एम ऑफ लर्निंग इज टू चेंज और मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ ए पर्सन. अगर कोई भी चीज हमारे व्यवहार को परिवर्तित कर देती है, हमारे बिहेवियर को चेंज कर देती है, दैट इज लर्निंग. तभी वह लर्निंग मानी जाती है. तो एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. देन कम्स देयर आर फ्यू डेफिनेशंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन. आई रीड दैट इज Charles A. Boucher. The first definition is there. Physical education is an integral part of the total educational process and has as its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizen through the medium of physical activities. चार्ल्स ए बाउचर कहता है कि इसका जो एम है फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल इंटीग्रल टोटल एजुकेशन का एक पार्ट है जिसका एम है व्यक्ति को, मनुष्य को सोशली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली फिट करना थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज. देन द अदर डेफिनेशन इज ऑबर्ट फ्यूर है, दैट इज फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ Physical education is the sum of those experiences which come to the individual through movement. Movement means sports activities, systematic activities, systematic physical activity. Systematic physical activities वो activities, वो exercises, वो game, वो sports है जिसका कोई न कोई एक पॉजिटिव टारगेट होता है, पॉजिटिव एम होता है, और वो जो कुछ नियमों के साथ बंधी है वो एक्टिविटी है और उनका जो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. फॉर यू कैन से दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर फिजिक विद मेंटल एस्पेक्ट.
So sports activity or physical activity, the systematic activities which are bound to develop our physical and mental abilities, social also. So next definition is Cassidy. Physical education is the sum of the chances in the changes in the individual caused by experience centering of motor activity. Motor activity means जिसमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मीन्स न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मीन्स आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिस आपके मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करता है, उन दोनों का हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। इन दोनों के हार्मोनियस रिलेशनशिप किन के मोटर सिस्टम मीन्स नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। आपके हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन से, इन दोनों सिस्टम के हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन से जो आप में चेंजेस आते हैं, दिस इज फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू दिस राइटर। देन यू कैन से दैट J.B. Nash, very famous definition. He said physical education is that field of education. Physical education has various parts, various subjects. So the one of these subject, a part of education is physical education. So J.B. Nash said physical education is that field of education which deals with big muscular activities. Very important, very interesting, very nice point this is given here. Yeah, which deals with big muscular activities and their related response. Here two things, big muscular activity and second one is related response. I clear you this, very important and very, you can say that fantastic definition. According to J.B. Nash, physical education is that field of education. एजुकेशन का वह भाग, वह पार्ट है which deals with, जो कि संबंध रखता है big muscular activities. As per activity, expert says there are two types of muscles in our body. As per activity, big muscles and small muscles. Big muscle produces strength, quadriceps, biceps, triceps, pectoral major, minor, so gluteus maximus. And small muscles, finger muscles, these are for accuracy. Big muscles is for producing strength and small muscle is for accuracy, not producing strength. अगर आप एक्यूरेट कोई काम करना चाहते हैं जिसके अंदर एक्यूरेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो फिंगर्स, मान लो सुई में धागा डालना है आपने, तो आप कैसे डाल सकते हैं? पैरों के मसल से नहीं डाल सकते, या आप यहाँ पकड़ के या आप अपने जैसे स्ट्रेंथ के साथ नहीं डाल सकते। यू नीड फिंगर, फिंगर इज फॉर एक्यूरेसी, क्यों एक्यूरेसी का काम है। और मान लो आपने कोई स्ट्रेंथ का, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट कोई फंक्शन करना है, तो आप स्मॉल मसल से नहीं कर सकते, आपको बिग मसल चाहिए, बाइसेप, क्वाड्रिसेप्स, इनको चाहिए। सो वो कहता है कि फिजिकल एजुकेशन का वह पार्ट है जो बड़ी बिग मस्कुलर एक्टिविटी के साथ संबंध रखता है, और उन एक्टिविटी को करने से जो रिस्पॉन्स देती है बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, उनसे जो संबंधित है, वो सारी चीज़ें फिजिकल एजुकेशन है। मीन्स क्या चेंज आएगा, जैसे आप स्पीड की ट्रेनिंग कर रहे हो, इसमें बिग मसल्स और इन्वॉल्व है, तो चेंज क्या आएंगे, कुछ टाइम के बाद, उस स्पेसिफिक ट्रेनिंग के बाद आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। दिस इज द चेंज। मान लो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, बिग मस्कुलर एक्टिविटी है, जिम में ट्रेनिंग कर रहे हो आप, बिग मस्कुलर एक्टिविटी है, कुछ दिनों बाद क्या चेंजेस आएंगे, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिग मस्कुलर एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्स। सो दिस इज द डेफिनेशन by J.B. Nash, very important and very fantastic definition. So the guys, today's this is enough. I think you read this. Tomorrow in next class I will send the video of aim of physical education. Okay, you read 4 or 5 minutes daily, okay, with all other subjects. Okay, bye, take care, happy birthday.